क्या क्या लिख रहे हैं, आपके आमाल में इतनी बुलंदी अता फरमा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? Have you ever realized why the teenagers are writing good deeds on behalf of every individual? Why? Because we are doing the zikr of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. We are doing the milad of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. This is the seerah. This is the maqam of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. So if anyone is going to ask you who is Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, apart from that he is the last messenger of Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if anyone is going to ask you, you are going to give them answer what I'm bayan right now. Is that the greatest human being to ever walk on the face of this planet, beloved to the heart of any true believer, role model for the entire world, our prophet, our messenger of messenger, our prophet of prophet, our light of light, our example, Huzur Nabi Karim alayhi salatu wasalam. The greatest mujahid was Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The greatest teacher was Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The greatest leader was Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The greatest human being was Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The greatest mercy on humanity was Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The greatest abid to ever was Allah subhanahu wa ta'ala was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The greatest human being to ever worship Allah subhanahu wa ta'ala was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The greatest human being to ever worship Allah subhanahu wa ta'ala was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the maqam, this is the seerah, this is the nisbat of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. You know the Sufyan Ikram, what they mention? They say if the whole ocean becomes into an ink, and the whole jungle becomes into a pen, still you won't be able to write the seerah of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. Still you won't be able to write the physical description of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. Still you won't be able to write the nisbat of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. This is the maqam, this is the nisbat of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपनी महफिल को और हल्का करूं. अब मैं बात उतना ही करूं जहां तक आपको समझ में आए. बहरहाल हम यहाँ जो बैठे अपने नबी का जिक्र है ना, बोलिए. हम यहाँ जो बैठे हैं नबी की आमद का जिक्र करने, और हकीकत तो ये है मेरे दोस्तों, कामयाब तो वो है जो निस्बत वाले हैं. ये शोहबते रसूल, निस्बते रसूल, मोहब्बते रसूल, जब ये तीन चीजें मिल जाती है उसे मुकम्मल दीन कहते हैं. क्या कहते हैं? दीन कहते हैं. और जनाब यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कामयाबी नहीं चाहिए. कामयाबी चाहिए ना. अगर मुझ जैसा खतीब हो मुझे भी कामयाबी चाहिए. मैं अपने वालिद ग्रामी हुजूर सूफी मिल्लत से पूछूं, उन्हें भी कामयाबी चाहिए. इंजीनियर हो उसे भी कामयाबी चाहिए. डॉक्टर हो उसे भी कामयाबी चाहिए. यूपीएससी एस्पायरेंट हो उसे भी कामयाबी चाहिए. नीट एस्पायरेंट हो उसे भी कामयाबी चाहिए. टीचर हो उसे भी कामयाबी चाहिए. स्टूडेंट हो उसे भी कामयाबी चाहिए. डॉक्टर हो उसे भी कामयाबी चाहिए. नर्स हो उसे भी कामयाबी चाहिए. तो पता चला हर एक शख्स को कामयाबी चाहिए. लेकिन सूफियाने किराम फरमाते हैं कि कामयाबी को तलाश करना ये गलत नहीं. कामयाबी तवज्जो फरमाइएगा, कामयाबी को तलाश करना ये गलत नहीं. पहले ये तय करो कि कामयाबी मिलती कहाँ है. तलाश करते जा रहे हो, रास्ता गलत, कामयाबी मिलती कहाँ है. मैंने एक तिजारत करने वाले से पूछा, आई आस्क्ड अ बिजनेसमैन वेयर डू यू फाइंड सक्सेस, वेयर डू यू फाइंड कामयाबी. मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा कि भाई आप तो बिजनेसमैन, आप तो तिजारत करने वाले हैं, आप बताइए कामयाबी क्या है. तो कहने लगे अबरार मियां कामयाबी तो ये है कि थोड़ा पैसा आवे, इन्वेस्टमेंट करो, ये प्लॉट लो, वो प्लॉट लो, ये धंधे में पैसा लगाओ, उस धंधे में पैसा लगाओ, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, फिर पैसा आए आधा पैसे को बैंक में परमानेंटली जमा करो, फिर आधा पैसे से इन्वेस्टमेंट करो, इस धंधे में पैसा लगाओ, यहाँ प्लॉट लो, वहाँ प्लॉट लो, इस धंधे में पैसा लगाओ, उस धंधे में पैसा लगाओ. और इसी तरह जब खूब सारा पैसा हो जाए तो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, मस्ती के साथ रहो. ये कामयाबी, यानी पैसा कमाना कामयाबी, ये आप कहते हैं. और सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं? वो कहेंगे नबी पर सब कुछ लुटाना ये कामयाबी, ये कामयाबी. अब आप देखिए हजरत जुनैद बगदादी से पूछिए कि कामयाबी क्या है. अब आप देखिए
आपको वाकया याद है ना हजरत जुनैद बगदादी का? আপনারা বসেন, তাবারুক চলে এসেছে আমাদের, কারণ সময় হয়ে গেছে। তাবারুক চলে এসেছে, আপনারা সামনের দিকে চলে আসেন। तो मैं ये कह रहा था हजरत जुनैद बगदादी से पूछिए, जुनैद बगदादी का किस्सा तो याद है ना आपको? कुश्ती लड़ रहे थे, एक दुबले पतले आदमी से हार गए। जब लोगों ने पूछा हुजूर आप तो इतने ताकतवर थे, ऐसे कैसे हार गए? तो उन्होंने कहा कि लड़ाई करने से पहले मेरे कानों में वो आके कह गए कि मैं आले रसूल हूँ, मुझे इस इनाम की जरूरत है, मुझे इस इनाम की जरूरत है। तो दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी निस्बत रसूल में है। आप निस्बत से जुड़ जाएं, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। वमा अलैना इल्लल बलाग।